Hello guys, good evening everyone. I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. We are here at Let's Crack NEET PG. Before starting our lectures, let's see Unacademy के बारे में. First of all, मैं अपना introduction कर देती हूँ. Myself, Dr. Nidhi. I am alumni of King George Medical University, KGMU, Lucknow. I'm teaching you all physiology. And guys, we all know physiology weightage is so high. Around 15 to 20 question every year come in NEET PG examination. So everyone clear the concept of physiology so that you can score more in your exam and you will be able to achieve your target. You will be able to achieve your dream college, everyone. Everyone install the Unacademy learning app from the Play Store and search this page, that is unacademy.com/@KGMC. This is my page. Follow me out there so that you can attend more and more classes, everyone. There is ongoing course. You can join that by using my referral code, that is Dr. Nidhi. There are many more special classes which you can attend anytime. There are many other renowned educators also on our platform, so you can join this platform, everyone. Now coming to the subscription. There are two types of subscription, Plus and Iconic. In Plus subscription, you will get benefited of live classes. In live classes, you can interact with your educator. You can clear your doubt in live classes only. There are many live tests and live quizzes are there. From that, you can analyze your preparation, everyone. Many batch course, many capsule course are going on there. There is a structure schedule out there. If you follow that structure schedule, you will definitely able to achieve your target, everyone. Now coming to the Iconic subscription. In Iconic subscription, you will get benefited of all these four of Plus classes, plus you will get access to our prep ladder. From that, you can access the video lecture, you can access the question bank, you can access the rapid revision course, and you will also get the handwritten notes. So if you want this benefit also, you can go for the Iconic subscription. Now coming to the subscription fee. First coming to the Iconic subscription. Iconic subscription is for starting for 1 year. 1 year fees is 55,000. 18-month fees is 66,000. 24-month fee is 77,000 and 36-month fee is 92,000. So after using my referral code, you will get instant 10% discount in your subscription, and this will be more economical for all of you. 12-month fee will reduce and it become to 49,500. 18-month fee will become 59,400. 24-month fee will become 69,300. 36-month fee will become 82,800. So everyone do use my referral code, that is Dr. Nidhi. Now coming to the Plus subscription, it is for 1 month, 3 months, 6 months, 12 month, 18 month, 24 month and 36 month. According to your requirement, you can take the subscription. If you are planning to give exam this year only, you can go for 1 month or 3 month. If you are going to appear for the next exam, I will highly suggest go for the 1 year or 18-month subscription. 1 year is enough for your preparation, guys. So go for that only. And finally, student, I will highly suggest that you go for the 2-year subscription because you will get enough time to prepare your lectures. You can revise as many times as you can. Now coming to my referral code, that is Dr. Nidhi. After applying that, you will get instant 10% discount in your subscription and your subscription fee will be reduced. 1 month fee will become 4,500. 3-month fee will become 11,250. 6-month fee will become 20,250. 12-month fee will become 24,750. 18-month fee will become 29,250. 24-month will become 36,000. And 36 month की fees हो जाएगी 45,000. So that will be more economical for all of you. So do use my referral code, that is Dr. Nidhi. Now everyone,
download the Telegram app and follow the page that is NEET Physiology. This is my page. You can follow me out there so that you will get notification of every class and you won't miss a single class, everybody. Do follow me out there. Do follow me on Unacademy. Search unacademy.com/@KGMC. Link for this will also be given in the description box. From there you can directly access the page. Now coming to our topic पे आते हैं. हम इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं. उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एवरीवन पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, आते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी. पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड. ठीक है, पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करती है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं, कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं. रिलीजिंग फैक्टर क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी को, एंड इनहिबिटिंग फैक्टर क्या करते हैं, हमारे पिट्यूटरी को इनहिबिट करते हैं. ठीक है, और पिट्यूटरी जाके हमारा स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, एंड दिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड पे जाता है एंड हार्मोनल एक्शन हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं. ठीक है, और यही जो हार्मोन्स हैं दिस गिव नेगेटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस. जब हार्मोन का लेवल सफिशिएंट हो जाता है देन इट गिव द नेगेटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस. ठीक है, this is the way by which pituitary is regulated by the hypothalamus. Clear, everyone? Now coming to the part of pituitary. Anterior pituitary. Excuse me. There are two parts of pituitary, anterior pituitary and posterior pituitary. Anterior pituitary is also known as adenohypophysis. Okay, this anterior pituitary secretes growth hormone, prolactin, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotrophin hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. These all six hormones are released from the anterior pituitary or adenohypophysis. ठीक है, now coming to the second part that is posterior pituitary. ये डायग्राम में एवरीवन देखिए ध्यान से. दिस इज द हाइपोथैलेमस. फ्रॉम हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी अराइज होती है एंड दिस इज आवर एंटीरियर पिट्यूटरी which consists of pars tuberalis, pars intermedia and pars distalis. These all three are a part of anterior pituitary. ठीक है, हाइपोथैलेमस से राइज होता है पिट्यूटरी स्टॉक and this pituitary stalk give the formation of posterior pituitary. ठीक है, anterior pituitary and posterior pituitary. Posterior pituitary is also known as pars nervosa. ठीक है, this is the diagram. ध्यान से देखिए एवरीवन. anterior pituitary hormones कैसे रिलीज होते हैं. हाइपोथैलेमस से क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है. ठीक है, और ये आता है हमारा बाय द हेल्प ऑफ हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन. ठीक है, ये आएगा हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन. ठीक, यहाँ पे आएगा तब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी एंड इट विल रिलीज द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स. ठीक है, दिस इज द वे बाय विच एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर सिक्रेटेड. ठीक है, अब हम आते हैं अपने पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी में के बारे में. इसमें क्रोमाफिल सेल्स होते हैं. क्रोमाफिल सेल होते हैं, इसमें 80% आर एसिडोफिलिक एंड 20% आर बेसोफिलिक. ठीक है, एसिडोफिलिक सेल्स में दो तरह के सेल होते हैं, सोमैटोट्रॉफ्स एंड लैक्टोट्रॉफ्स. सोमैटोट्रॉफ्स इज 50%. ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस द ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, और दूसरा जो सेल होता है दैट इज लैक्टोट्रॉप्स. लैक्टोट्रॉप्स कितने होते हैं, 10 to 20%, एंड इट प्रोड्यूसेस प्रोलैक्टिन हार्मोन. ठीक है, एसिडोफिलिक से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन. ठीक है,
एंड बेसोफिलिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एटिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. These four hormones are released from the basophilic cell of anterior pituitary. ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ और सेल्स होते हैं बिसाइड एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक सेल. दे आर नोन एज कॉर्टिकोट्रॉफ्स. ठीक है, and this contain a precursor molecule which is known as pro-opiomelanocortin. ठीक है, this is the precursor molecule present in a corticotrophs. और यही pro-opiomelanocortin क्या करता है? 3 सब्सटेंस डिराइव होती है. फर्स्ट इज ओपियोइड, दैट इज एंडोर्फिन. मेलानो से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, and cortin stand for adrenocorticotropic hormone. These three hormones are released from pro-opiomelanocortin, which is present in the corticotrophs. ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स कौन कौन से हो गए? एसिडोफिलिक सेल्स, बेसोफिलिक सेल एंड कॉर्टिकोट्रॉफ्स. ठीक है, अब इसी चीज को डायग्राम में देखो. दीज आर एसिडोफिलिक सेल्स. ठीक है, एसिडोफिलिक सेल क्या क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन. ठीक है, और बेसोफिलिक सेल क्या रिलीज करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एटिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. फिर रेस्ट सेल्स होते हैं क्रोमैटोफोर्स. क्रोमैटोफोर्स क्या रिलीज करता है? प्रो-ओपियोमेलानोकॉर्टिन प्रिकर्सर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसमें. क्लियर एवरीवन? दिस इज ऑल अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी. अब आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस और पास नर्वोसा भी कहते हैं. ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन. Hormone production is not occurring in the posterior pituitary. It only stores the hormone which is produced in the hypothalamus. ठीक है, कौन कौन से हार्मोन? vasopressin and oxytocin are produced in a hypothalamus and stored in a posterior pituitary. Clear? vasopressin कहाँ प्रोड्यूस होता है? vasopressin is produced in supraoptic nucleus of hypothalamus. ठीक है, and oxytocin is produced by paraventricular nucleus of hypothalamus. Clear everyone? And these two hormones are stored in a storage body called as Herring bodies. ठीक है, हमारा जो vasopressin है and oxytocin है, this is stored in Herring bodies. Clear? अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट पे. इसमें क्या है कि जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस के बोथ कंट्रोल में होता है, एक्साइटेटरी कंट्रोल एंड इनहिबिटरी कंट्रोल, जिसमें एक्साइटेटरी कंट्रोल इज प्रीडोमिनेंट. बट देयर इज एक्सेप्शन आउट हियर, दैट इज प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन इज प्रीडोमिनेंटली इनहिबिटेड बाय हाइपोथैलेमस. ठीक है, नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल इंडिविजुअल में हमारा प्रोलैक्टिन इज predominantly under inhibitory control of hypothalamus. Clear? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखिएगा. प्रोलैक्टिन इज predominantly under inhibitory control of hypothalamus. Clear everyone? चलो, दिस इज द डायग्राम जहां पे अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में. पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. हेलो डॉक्टर अपूर्व. हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम द पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस. पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से रिलीज होता है हमारा ऑक्सीटोसिन. ठीक है, एंड दिस ऑक्सीटोसिन क्रॉसेस द हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट एंड रीच द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, और हमारा जो वेसोप्रेसिन है और ADH है, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस. ठीक है,
हाइपोथैलेमस में इसका प्रोडक्शन हुआ, इट कम टू द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट एंड रीचेस द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इस तरह से हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज। क्लियर एवरीवन? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कैसे रिलीज हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कैसे रिलीज हो रहा है, एवरीवन क्लियर है? चलो, now coming to the first hormone, that is growth hormone. Growth hormone peptide hormone है हमारा, and it is made up of 191 amino acid. ठीक है, और इसका जो एक्शन है that is opposite to insulin, so it is also known as anti-insulin or diabetogenic hormone. ठीक है, excuse me. और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया दैट इज इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द एसिडोफिलिक सेल्स। क्लियर? इसकी जो लेवल है डिफरेंट एज में डिफरेंट होती है। इट इज मैक्सिमम इन द एज ग्रुप ऑफ एडोलेसेंस एंड इट इज मिनिमम एट द एज ऑफ ओल्ड एज पर्सन। क्लियर? ग्रोथ हार्मोन क्लियर है? इंट्रोडक्शन इसके बारे में। नाउ कमिंग टू द रेगुलेशन। हेलो डॉक्टर मुकेश। Now coming to the regulation of growth hormone secretion. हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है एंड इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज सोमैटोस्टैटिन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी टू फॉर्म ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, इट इनहिबिट द एंटीरियर पिट्यूटरी and decreases the growth hormone secretion. ठीक है, clear everyone? तो जो हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है उसका एनालॉग होता है सर्मोरेलिन। ठीक है, so that's why it is used in cases of pituitary dwarfism. Hello Dr. Rita. Sermorelin, this is a growth hormone releasing analog which is used in cases of pituitary dwarfism. Somatostatin analog, जैसे octreotide, it is used in cases of acromegaly. ठीक है, somatostatin analog is used for acromegaly. Growth hormone releasing hormone is used in cases of pituitary dwarfism. Clear everyone? गुड इवनिंग डॉक्टर आकृति। इसी चीज को अब हम डायग्राम से समझते हैं, फ्लो चार्ट से। हमारा हाइपोथैलेमस क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट। दिस विल स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, एंड व्हेन दिस ग्रोथ हार्मोन रिलीज्ड इट गोज टू द टारगेट टिश्यू फॉर द एक्शन। ठीक है, अब जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा देन इट विल stimulate the hypothalamus to release somatostatin, and this somatostatin will inhibit the anterior pituitary and growth hormone हमारा decrease हो जाएगा। क्लियर? और जब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तो इट विल स्टिमुलेट लिवर टू फॉर्म इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो हम कहते हैं सोमैटोमेडिन्स। सोमैटोमेडिन्स। This also inhibit the hypothalamus. This also stimulate the hypothalamus to release somatostatin, and it inhibit the anterior pituitary to inhibit the release of growth hormone. Clear है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, अपने टारगेट टिश्यू पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इट विल स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, इट इनहिबिट एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा तो वो लिवर से रिलीज कराएगा सोमैटोमेडिन्स और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स।
This also stimulates hypothalamus to release somatostatin, and it inhibits anterior pituitary to decrease the release of growth hormone. Clear है everyone? Concept clear है? Growth hormone regulation, somatostatin, somatomidins, सभी चीज क्लियर है सभी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं. Now coming to the stimulus for growth secretion. There are some stimulus which increase the growth hormone secretion. ठीक है. First is hypoglycemia. Whenever the glucose body in the body decreases, whenever there is decrease in glucose, तो हमारा growth hormone secretion increase हो जाता है. So in cases of fasting, in cases of starvation, in cases of exercise, in cases of stress, इन सभी केसेस में क्या होगा? ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस, so growth hormone secretion increases in all these cases. Clear? In cases of sleep, sleep का फेज होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. इस केस में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन क्या होती है? इंक्रीज होती है. गुड इवनिंग डॉक्टर अभिषेक. ठीक है. स्टिमुलस जो कि डिक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन, वो कौन कौन सा है? हमारा रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड सोमैटोस्टैटिन. These two decreases the growth hormone secretion. Clear है? चल. Now coming to the action of growth hormone. ठीक है. पहला हम डायरेक्ट एक्शन देखेंगे. तो ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ जो एक्ट करता है दैट इज डायरेक्ट एक्शन. तो ग्रोथ हार्मोन का जो एक्शन है दैट इज एंटी इंसुलिन. एवरीवन याद रखिएगा, growth hormone action is anti insulin. So it will cause hyperglycemia and it will cause lipolysis. Clear? The main action of growth hormone is anti insulin. Good evening Dr. Vikash. Good evening Dr. Khan. ठीक है. हम ग्रोथ हार्मोन के एक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन. जो ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली एक्ट करता है दैट इज डायरेक्ट एक्शन. तो जो डायरेक्ट एक्शन है वो एंटी इंसुलिन होता है. एंटी इंसुलिन होता है दैट मीन्स इट कॉजेज हाइपरग्लाइसेमिया एंड इट विल कॉज लाइपोलाइसिस. ठीक है. इनडायरेक्ट एक्शन की बात करें तो इट इज मीडिएटेड बाय सोमैटोमिडीन्स. ठीक है. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था एवरीवन. फिर से देखिए, जब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तो लिवर को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर दैट इज सोमैटोमिडीन्स. ठीक है. दिस सोमैटोमिडीन्स का एक्शन जो होता है दैट इज इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ठीक है. इनडायरेक्ट एक्शन दैट इज मीडिएटेड बाय सोमैटोमिडीन्स. सोमैटोमिडीन आर आल्सो नोन एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. इसका एक्शन क्या होगा? इंसुलिन लाइक होता है इसका एक्शन. तो इट इज एंटी लाइपोलाइसिस. ठीक है. और इट विल कॉज हाइपोग्लाइसीमिया. करेक्ट है. नाउ कमिंग टू द ग्रोथ हार्मोन का एक्शन बोन्स पे क्या होता है? बोन्स पे डायरेक्ट एक्शन भी होता है, इनडायरेक्ट एक्शन भी होता है. डायरेक्ट एक्शन यानी ग्रोथ हार्मोन का एक्शन. तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? इट हेल्प टू कन्वर्ट द प्री कॉन्ड्रोसाइट्स इनटू मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट्स. ठीक है. और जो फर्दर ग्रोथ है दैट इज मीडिएटेड बाय सोमैटोमिडीन्स. ठीक है. डायरेक्ट एक्शन क्या है? प्री कॉन्ड्रोसाइट इज कन्वर्टेड टू मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट. और इनडायरेक्ट एक्शन है कि फर्दर बोन ग्रोथ अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सोमैटोमिडीन्स और इंसुलिन लाइक ग्रोथ. क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? एवरीवन चलो अब आगे आते हैं हम डिसऑर्डर्स related to the growth hormone. First is hypersecretion. Hypersecretion before puberty it causes gigantism. Okay? Before puberty का क्या मतलब होगा? कि fusion of epiphysis नहीं हुआ है उस केसेस में, so it will lead to gigantism. ठीक है.
और ये कब कब होता है? इन केसेस ऑफ एसिडोफिलिक ट्यूमर्स and hypersecretion of growth hormone releasing hormone. ठीक है, clear everyone? After pituitary क्या होता है? After puberty क्या होता है? It will cause acromegaly. After puberty क्या हुआ? हमारा epiphysis जो है वो फ्यूज हो जाएगा, तो इट विल लीड टू acromegaly. और ये किस केसेस में होता है? इन केसेस ऑफ सोमैटोट्रॉफ्स एडिनोमा. क्लियर एवरीवन? जाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली. जाइगेंटिज्म में क्या होता है कि पूरी बॉडी इनलार्ज होती है. बिफोर प्यूबर्टी होता है, इस वजह से होता है. और इसमें क्या होता है? इपिफाइसिस का फ्यूजन नहीं होगा बिफोर प्यूबर्टी. दैट्स व्हाई होल बॉडी इज एलोंगेटेड. ठीक है. आफ्टर प्यूबर्टी मतलब इपिफाइसिस फ्यूजन हो चुका है, तो इट विल लीड टू एक्रोमेगाली. इस केसेस में क्या होगा? थिकनेस ऑफ बोन इंक्रीजेस, prognathism is seen, and organomegaly, especially macroglossia, is seen in the cases of acromegaly. Enlarged tongue is seen in cases of acromegaly. Clear? Gigantism and acromegaly are the disorder resulted from the increased growth hormone. ठीक है? Now coming to the hyposecretion. Before puberty, it will lead to the dwarfism, and after puberty, it will lead to the acromicria. ठीक है? Before puberty, it will lead to dwarfism. After puberty, it will lead to acromicria. Small organs are seen. Abhishek ma'am, repeat acromegaly. देखिए, ध्यान से देखिए. जाइगेंटिज्म कब होता है? बिफोर प्यूबर्टी. बिफोर प्यूबर्टी क्या होता है? हमारा एपिफाइसिस फ्यूजन नहीं होता है. एपिफाइसिस फ्यूजन नहीं होगा तो हमारी होल बॉडी की जो बोन्स हैं दैट विल बी इनलार्ज इन केसेस ऑफ जाइगेंटिज्म. जबकि आफ्टर प्यूबर्टी एक्रोमेगाली होता है. आफ्टर प्यूबर्टी मतलब हमारा एपिफाइसिस फ्यूजन हो चुका है, तो दैट्स वाई बोन इलोंगेशन तो नहीं होता है इसमें होता है इंक्रीज थिकनेस ऑफ बोन. प्रोग्नाथिज्म. प्रोग्नाथिज्म क्या होता है? मैंडिबल हमारा ज्यादा ग्रो कर जाता है इन कंपेयर टू मैक्सिला. दैट विल लीड टू द इनलार्ज मैंडिबल्स. ठीक है. ऑर्गेनोमेगाली इज सीन. ऑर्गेनोमेगाली में स्पेशली जो सीन होता है दैट इज मैक्रोग्लॉसिया. इनलार्ज टंग इज सीन इन केसेस ऑफ एक्रोमेगाली. क्लियर है डॉक्टर अभिषेक? आगे बढ़े. नाउ कमिंग टू द hyposecretion. Hyposecretion, before puberty it will lead to the dwarfism. After puberty it will lead to acromicria. Small organs are seen in these cases. एक्रोमेगाली के केसेस में लार्ज ऑर्गन आर सीन एक्रोमेगाली के केसेस में, जबकि इन केसेस ऑफ एक्रोमाइक्रिया हमारा स्मॉल ऑर्गन्स आर सीन. ठीक है. डॉर्फिज्म दो तरह की होती है, लेवी लोरैन डॉर्फिज्म, ठीक है, एंड लैरोन्स एक्सक्यूज मी. दो तरह की डॉर्फिज्म होती है, लेवी लोरैन डॉर्फिज्म एंड लैरोन्स डॉर्फिज्म. दोनों ही केस में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन इज नॉर्मल, बट लेवी लोरैंस डॉर्फिज्म में क्या होता है? देयर इज डिफिशियंसी ऑफ सोमैटोमिडिन्स. सोमैटोमिडिन्स क्या कर रहा था एवरीवन? सोमैटोमिडिन्स क्या कर रहा था? सोमैटोमिडिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनडायरेक्ट ग्रोथ ऑफ बोन्स. ठीक है. तो देयर इज डिफिशियंसी ऑफ सोमैटोमिडिन्स, देयरफॉर growth of bone will not occur. That's why dwarfism is seen in this case. Levi-Lorenz dwarfism. Growth hormone is normal, but there is deficiency in somatomidines.
क्लियर? अब आते हैं लैरॉन्स डॉर्फिज्म। लैरॉन्स डॉर्फिज्म में भी क्या होता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन इज नॉर्मल, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इज नॉर्मल, बट जो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर हैं वो इनसेंसिटिव हो जाएंगे, ग्रोथ हार्मोन अपना एक्शन नहीं शो कर पाता है। दिस इज नोन एज लैरॉन्स डॉर्फिज्म। क्लियर है? लेवी लोरेंस डॉर्फिज्म एंड लैरॉन्स डॉर्फिज्म। एवरीवन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? These two are the dwarfism most commonly seen, Levi-Lorenz dwarfism and Laron's dwarfism. चलो अब आते हैं नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है ऑल्सो एसिडोफिलिक सेल से। एसिडोफिलिक सेल कौन कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था, हमारा ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। दिस प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द एसिडोफिलिक सेल्स, ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, we call the milk production that is lactogenesis. Term used for milk production is lactogenesis. Breast development के लिए भी prolactin responsible होता है, so it is useful in mammogenesis. It stimulates lactation. It is also responsible for galactopoiesis, ठीक है। It inhibits ovulation and it also inhibits spermatogenesis, ठीक है। These all are action of prolactin: lactogenesis, mammogenesis, galactopoiesis, and inhibition of ovulation and inhibition of spermatogenesis. क्लियर है? जो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन है दैट इज पल्सेटाइल एंड बाइमोडल। समटाइम इट इज हाई, समटाइम इट इज लो। कब हाई होता है, ड्यूरिंग द स्लीप, स्लीप टाइम में इट इज हाई, नून टाइम में it is low, and during sleep it is high. Bimodal pattern show करता है, and this prolactin is also affecting our stimulation of rapid eye movement sleep, ठीक है। clear है? The primary effect of prolactin is stimulation of rapid eye movement sleep, ठीक है। everyone clear है? These all are function or action of prolactin. अब आते हैं प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ट्रॉफिक हॉर्मोन्स, ठीक है। नॉर्मली जो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से दैट इज आवर डोपामिन। तो एवरीवन हाईलाइट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आता है। हाइपोथैलेमस से मेनली रिलीज होता है डोपामिन। जो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन है दैट इज मेनली अंडर द इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। वो किसके थ्रू होता है, बाय द एक्शन ऑफ डोपामिन, ठीक है। दिस डोपामिन क्या करता है, इनहिबिट करता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और प्रोलैक्टिन सिक्रीशन नहीं होता, ठीक है। और ड्यूरिंग द केसेस ऑफ प्रेगनेंसी और कुछ और केसेस होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, उस केसेस में हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है ट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। दिस स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज द प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन मैमरी ग्लैंड में जाएगा, मैमोजेनेसिस करेगा, एंड दिस प्रोलैक्टिन व्हेन सिक्रीशन इंक्रीज्ड इट विल गिव द नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस क्या करेगा, डोपामिन सिक्रीट करना शुरू कर देगा, एंड दिस डोपामिन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा। क्लियर? दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म जिसपे हमारा प्रोलैक्टिन वर्क करता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो प्रोलैक्टिन है दैट इज अंडर द नेगेटिव इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन नॉर्मल केसेस, ठीक है। क्लियर एवरीवन? और ये किसके थ्रू एक्ट करता है, बाय डोपामिन। एवरीवन क्लियर है या फिर से रिपीट करूं?
चलो अब आगे बढ़ते. Now coming to the stimulus which increase the production of prolactin. ठीक है. First is pregnancy, second is lactation, third is sleep, fourth is strenuous exercises, option E is sexual intercourses, and in cases of stress. All these increases the prolactin secretion. ठीक है. Clear? And now coming to the factor which decrease the prolactin secretion. Prolactin inhibitory factors जो कि hypothalamus से release होता है, this decreases the prolactin. There are some additional compounds, L-dopa and bromocriptine. These also decreases the prolactin secretion. Clear? Factor decreasing prolactin secretion clear है? प्रोलैक्टिन से कौन सा इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज होता है एवरीवन? अभी हमने डिस्कस किया था डोपामिन. This dopamine decrease the prolactin secretion from our pituitary. ठीक है. And these all are synthetic products which are used to decrease the prolactin secretion, L-dopa and bromocriptine. Clear? Now coming to the disorders. जब हाइपरप्रोलैक्टीनिया होगा तो क्या क्या होगा? हाइपरप्रोलैक्टीनिया कब होगा? इन केसेस ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा. स्पेशली कब होगा? जब लैक्टिनोमास होंगे. ठीक है. जो है ना लैक्टिन सिक्रीट कर रहे हैं वो सेल की जब कार्सिनोमा होगी देन इट विल कॉज द हाइपरप्रोलैक्टीनिया. ठीक है. इस केस में इन केसेस ऑफ विमेन क्या क्या फीचर्स मिलेंगे? In women, we will get amenorrhea or pre-discharge of milk from breast, that is known as galactorrhea. ठीक है. And infertility. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था प्रोलैक्टिन क्या करता है हमारा? इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को. So it will cause infertility in women also. अब बात करते हैं मेल में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे इन केसेस ऑफ हाइपरप्रोलैक्टीनिया. So in cases of male हमें जो मिलेगा that is infertility and decreased libido. Clear? In women it will cause amenorrhea and galactorrhea, infertility, and male it will cause infertility and decreased libido. So in cases of hyperprolactinemia जो drug use होते हैं that is cabergoline and bromocriptine. These two are used for decreasing the prolactin secretion. ठीक है. So in cases of hyperprolactinemia, दो drugs use करते हैं that is cabergoline and bromocriptine. Clear? Everyone? चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट हार्मोन दैट इज एंटीडायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन. ये कहाँ से रिलीज हो रहे थे एनीवन? This is released from supraoptic nucleus of hypothalamus. और ये आके स्टोर्ड होते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इन द फॉर्म ऑफ हेरिंग बॉडीज. ठीक है. और इसका जो मेजर फंक्शन है दैट इज वाटर रिजॉर्प्शन. ठीक है. और ये किस सेल पे एक्ट करता है? एट द पी सेल और मेडुलरी पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट में पी सेल्स होते हैं एंड आई सेल्स होते हैं. दिस ADH act on P cells and it regulate the osmolarity of the body. ठीक है. ये कैसे होता है? नर्व सेल जो कि हाइपोथैलेमस में है, ठीक है, वो सेंस करते हैं ऑस्मोलैरिटी को. So whenever there is hypertonic plasma, तो these nerve cell body क्या करते हैं? वो shrink हो जाते हैं and it will cause secretion of ADH. ठीक है. और ADH release होगा and it will act via V1 receptor, V2 receptor and V3 receptors. ठीक है. और हमारा action shown होगा. That is water resorption will occur.
This occur by the V2 receptor. Water reabsorption start. क्लियर है? ADH का मेन रोल है, इट रेगुलेट द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी. Whenever there is hypertonic plasma, nerve cell body shrink होता है and it will release the ADH. ADH via the V2 receptor cause water resorption और osmolarity maintain हो जाता है. Clear है? Now coming to the vasopressin receptors. इसमें हमारा V1 receptors आते हैं. V1 receptors. V1 receptor कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट इज प्रेजेंट इन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? वेजो कंस्ट्रिक्शन. ठीक है, V1 एगोनिस्ट जो होता है हमारा टर्लीप्रेसिन. टर्लीप्रेसिन इज यूज फॉर इसोफेजियल वेरिसेस. क्लियर? V1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में. और ये क्या एक्ट करते हैं? इट कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन. V1 agonist terlipressin is used for esophageal varices. ठीक है. Now coming to the V2 receptors. V2 receptor कहाँ प्रेजेंट होते हैं? It is present in the collecting duct और vascular endothelium. ठीक है, तो collecting duct में इसका क्या फंक्शन है? It will cause water resorption. ठीक है, एंड वैस्कुलर एंडोथेलियम में क्या करता है? इट कॉज वॉन वेलिब्रांड फैक्टर इज रिलीज. ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है एंड वैस्कुलर एंडोथेलियम पे एक्ट करता है. दीज V2 रिसेप्टर्स. क्लियर एवरीवन? सो एवरीवन ध्यान से देखिए, इन वॉन विलीब्रांड डिजीज क्या करते हैं? हम डेस्मोप्रेसिन देते हैं इंट्रानेजली और ये डेस्मोप्रेसिन एक्ट करता है V2 रिसेप्टर्स पे और वॉन वेलिब्रांड फैक्टर रिलीज होता है और हमारी वॉन वेलिब्रांड डिजीज विल बी क्योर्ड. ठीक है, क्लियर है सभी को? तो याद रखेंगे एवरीवन, इन केसेस ऑफ वॉन वेलिब्रांड डिजीज वी गिव डेस्मोप्रेसिन. ये डेस्मोप्रेसिन V2 रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है एंड वॉन वेलिब्रांड फैक्टर रिलीज होगा और डिजीज विल बी क्योर्ड. ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट रिसेप्टर, वेसोप्रेसिन रिसेप्टर, दैट इज V3 रिसेप्टर्स. और V3 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? V3 receptor are present in anterior pituitary and its function is to release adrenocorticotropic hormone. Clear? V1 receptor, V2 receptor and V3 receptor. Clear है सभी को? Everyone. V1 receptor कहाँ प्रेजेंट होता है? Everyone. फिर से देखिए, स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है. इट कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन. V2 रिसेप्टर हमारा कलेक्टिंग डक्ट और वैस्कुलर एंडोथेलियम में प्रेजेंट होता है. वैस्कुलर एंडोथेलियम में क्या करता है? वॉन विलीब्रांड फैक्टर रिलीज कराता है ये. So that's why desmopressin is given intranasally in cases of von Willebrand diseases. ठीक है everyone? V3 receptor कहाँ प्रेजेंट होता है? It is present in anterior pituitary और इसका फंक्शन क्या है? It help in releasing adrenocorticotropic hormone. ठीक है, ये हमारे 3 वेसोप्रेसिन रिसेप्टर है. ठीक है, क्लियर? नाउ कमिंग टू द डिसऑर्डर रिलेटेड टू द vasopressin. First is hypersecretion. Hypersecretion of vasopressin will cause syndrome of inappropriate ADH. ये क्या होता है? It occur in the stressful condition. जब क्या होता है? Plasma osmolarity तो normal है, but there is still increase in ADH secretion. ADH secretion increase होगा, water resorption होगा, it will lead to the hypotonic plasma and plasma volume increase. ठीक है, this is the syndrome of inappropriate ADH. Clear? इसमें क्या होगा? stressful condition है, osmolarity is normal but ADH secretion is increased due to the stressful condition. ADH secretion increase होगा तो it will cause retention of water resulting in a hypotonic plasma and plasma volume will increase.
these are the symptoms of syndrome of inappropriate ADH. Clear? Now coming to the next disorder, that is hyposecretion. ठीक है, hyposecretion of our ADH will cause diabetes insipidus. ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा वाटर रिजॉर्प्शन नहीं होगा एंड इट विल लीड टू डाययूरेसिस. ठीक है, और जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है, दिस इज ऑफ टू टाइप, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस. सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो एडीएच सिंथेसिस एंड रिलीज इफेक्ट होता है. एडीएच का सिक्रीशन और उसका एक्शन दोनों ही इफेक्ट होता है इस केस में. जबकि नेफ्रोजेनिक में क्या होता है कि इसका सिंथेसिस और रिलीज नॉर्मल होता है, बट इट्स एक्शन ऑन किडनी इज अफेक्टेड ड्यू टू द लैक ऑफ रिसेप्टर्स. ठीक है, रिसेप्टर होगा नहीं, रिसेप्टर डिस्ट्रॉयड हो गया इन केस, तो उस केस में हमारा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होगा. जब एडीएस सिंथेसिस या फिर उसकी रिलीज में कोई डिसऑर्डर है, देन इट विल कॉल सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस. डॉक्टर अभिषेक, आप लेक्चर नोट कर सकते हैं. यू विल नोट द लेक्चर, पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए. ठीक है, आगे देखिए हम. हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच. हाइपोसिक्रीशन की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस. ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस सेंट्रल होता है, नेफ्रोजेनिक होता है. नेफ्रोजेनिक कब कहलाएगा, जब देयर इज लैक ऑफ रिसेप्टर्स, तो उस एडीएच का एक्शन प्रॉपर नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. क्लियर? आगे बढ़े. अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड है. जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो आप करेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज एसिडोफिल सिक्रीट्स. ऑप्शन ए ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ऑप्शन डी इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, सभी ऑप्शन पढ़ लिया सभी ने. नाउ एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. एक्सक्यूज मी. एसिडोफिल्स क्या क्या सिक्रीट करता है, एनीवन? एसिडोफिल सिक्रीट्स, एसिडोफिल सिक्रीट करता है हमारा ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन. So answer is A. Growth hormone is secreted by acidophils. ठीक है. Now coming to the next question. Hypothalamus control the hormonal secretion of anterior hypophysis, posterior hypophysis, kidney, pineal gland. ठीक है. Now everyone answer this question. Hypothalamus controls secretion of anterior hypophysis, posterior hypophysis, kidney, pineal gland. Everyone. Anterior hypophysis के जो hormones हैं, that is under the control of hypothalamus. ठीक है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन्स हैं दैट इज रिलीज बाय हाइपोथैलेमस ओनली. ठीक है. इंटीरियर हाइपोफाइसिस के जो हार्मोन है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Hypothalamus increase release of all hormone from the pituitary except. ठीक है.
क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया. नाउ एवरीवन ऑप्शन पढ़िए. फर्स्ट ऑप्शन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ऑप्शन सी इज CRH. ऑप्शन डी इज प्रोलैक्टिन. ठीक है, सभी ने ऑप्शन पढ़ लिया. Now everyone answer this question. Hypothalamus increase release of all hormone except. Everyone. Answer is prolactin. आज ही हमने डिस्कस किया. Prolactin is the hormone that is under the inhibitory control of hypothalamus. बाकी सारे hormones both inhibitory and stimulatory controls पे होते हैं. But prolactin is mainly majority of time it is under the inhibitory control of hypothalamus. ठीक है, answer is D. Clear? Now coming to the next question. Basophilic cells of pituitary secretes all except. Option A is prolactin and growth hormone. Option B is thyroid stimulating hormone. Option C is adrenocorticotropic hormone. Option D is luteinizing hormone. काफी बार repeat हुआ है ये question. Everyone answer this question. Basophil cells of pituitary secretes all except. Everyone. हमारा जो एसिडोफिलिक सेल्स है that secretes prolactin and growth hormone. So answer is A. Prolactin and growth hormone are not secreted by basophilic cell. It is secreted by acidophilic cell of anterior pituitary. Clear? Now coming to the next question. Hormones secreted by anterior pituitary or adenophysis are all except. Option A is oxytocin and vasopressin. Option B is thyroid stimulating hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone. Option C is gonadotrophins. Option D is adrenocorticotropic hormone. ठीक है, काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन. ठीक है, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Everyone. Hormones secreted by anterior pituitary or adenophysis are all except. Everyone. जो हमारा ऑक्सीटोसिन है और वेजोप्रेसिन है, दिस इज सिक्रीटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, आंसर इज ए. हाँ डॉक्टर अभिषेक, काफी बार रिपीट हो जाते हैं. अच्छे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, तो इसीलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए एवरीवन. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट्स. ठीक है, ऑप्शन ए इज ऑक्सीटोसिन ADH. ऑप्शन बी इज प्रोलैक्टिन. ऑप्शन सी इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ऑप्शन डी इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, काफी बार हमने डिस्कस कर लिया. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Everyone, posterior pituitary secretes. Excuse me.
हमारा posterior pituitary secretes oxytocin and ADH. Answer is A. Clear? Now coming to the next question. Hearing body is seen in pars intermedia, pineal gland, pars nervosa, adenohypophysis. ठीक है? क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया. Now everyone answer this question. Hearing body is seen in everyone. Hearing body क्या होता है? It is the storage form of our vasopressin and oxytocin. हमारा oxytocin और vasopressin stored होता है हमारे hearing bodies में. And this is present in our neurohypophysis or posterior pituitary or pars nervosa. ठीक है? Answer is C. Very good, Dr. Ambuj. Next question. Adrenocorticotropic hormone is highest during early morning, evening, afternoon, midnight. ठीक है? Everyone answer this question. ACTH level is highest during everyone. Yes, Dr. Akriti, आपका भी आंसर सही था. Very good. ACTH level is highest during ACTH जो है वो diurnal variation शो करता है. It is highest in the early morning and it is lowest in the cases of noons. इवनिंग होते होते इसकी लेवल बहुत डाउन चली जाती है. इट इज हाईएस्ट इन द मॉर्निंग. आंसर इज ए. Now coming to the next question. Adrenocorticotropic hormone is released in all except, ठीक है, एक्सरसाइज, इमोशन, इवनिंग, ट्यूमर्स. ठीक है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया. नाउ एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. ACTH secretion is increased in all except भी जस्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में कि ACTH क्या होता है. हमारा डाययूर्नल वेरिएशन जो होता है. डाययूर्नल वेरिएशन मतलब इट इज हाईएस्ट इन द केसेस ऑफ मॉर्निंग एंड इट इज लोएस्ट इन द केसेस ऑफ इवनिंग. तो आंसर इज सी. इवनिंग के टाइम में ACTH का लेवल डाउन होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Acromegaly is seen due to excess of. Option A is somatomedins. Option B is growth hormone. Option C is somatostatin. Option D is insulin. ठीक है? Everyone answer this question. Acromegaly is due to excessive of which hormone? Everyone. Acromegaly is due to the excess acromegaly is due to the excessive growth hormone. Yes, Dr. Abhishek, answer is growth hormone. Somat, option A is deposit of chondroitin sulfate. Option B is lipolysis. Option C is gluconeogenesis. Option D is decreased rate of glucose uptake by cells. एम्स 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है. एम्स 2009 में आया क्वेश्चन है. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. सोमैटोमेडिन mediates. Everyone.
everyone, somatomedins mediate. Somatomedins are also known as, everyone, insulin-like growth factors. Okay, somatomedins is also known as insulin-like growth factors. ठीक है, इसका एक्शन जो होता है इट इज सेम लाइक इंसुलिन. तो इंसुलिन क्या करता है, इट प्रमोट लाइपोजेनेसिस. ठीक है, ऑप्शन बी इज रॉन्ग. इट प्रिवेंट्स न्यू ग्लूकोजेनेसिस. इंसुलिन प्रिवेंट न्यू ग्लूकोजेनेसिस. ठीक है, ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स. ठीक है, these three are wrong. Option A is deposition of chondroitin sulfate. Further जो bone development होता है, indirect development of bone, it is due to the somatomedins. ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा chondroitin sulfates deposition start होता है and answer is A. Clear everyone? चलो next question करें. Now coming to the next question. Growth hormone level decreased in. ग्रोथ हार्मोन लेवल हमारा कब डिक्रीज होता है? ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन बी फास्टिंग, ऑप्शन सी स्लीप, ऑप्शन डी एक्सरसाइज. ठीक है, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. growth hormone level decreased in cases of, everyone, ग्रोथ हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता है इन केसेस ऑफ REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के केसेस में हमारा ग्रोथ हार्मोन का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. सो आंसर इज सी. ठीक है, स्लीप की बात कर रहा है तो हमारा डीप स्लीप की बात कर रहा है. ठीक है, एंड इन केसेस ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप हमारा ग्रोथ हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है. इन केसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हमारा ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है. इन केसेस ऑफ फास्टिंग हमारा क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है एंड दैट विल लीड टू द इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन. सेम केसेस हमारे एक्सरसाइज के केस में होता है. whenever a person is doing exercise, हमारा जो glycemic index है that goes down and it will promote the growth hormone release. So answer is C. Clear? Now coming to the next question. Secretion of prolactin is affected by growth hormone releasing hormone analogs, dopamine, serotonin, follicle stimulating hormone. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? Now everyone answer this question. Secretion of prolactin is affected by, everyone, ड्यूरिंग फास्टिंग क्या होगा, बॉडी स्टार्व करेगी. ठीक है, स्टार्वेशन के टाइम में हमारा ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा एंड दिस डिक्रीज ग्लूकोज लेवल विल प्रमोट द ग्रोथ हार्मोन. क्लियर है अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक, आपको क्लियर है? ये क्वेश्चन डिस्कस करें. सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन इज अफेक्टेड बाय जो हमारा प्रोलैक्टिन है इसकी सिक्रीशन नॉर्मली इनहिबिटेड होती है बाय द डोपामिन. तो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इज अफेक्टेड बाय डोपामिन. Clear? Now coming to the next question. Pituiticides are seen in anterior lobe, posterior lobe, intermediate lobe, all. ठीक है, everyone answer this question.
pituitary sites are present in? Everyone. Pituitary sites are present in the posterior lobe of pituitary. Answer is B. ठीक है. Now coming to the next question. Option इसका ध्यान से पढ़िएगा everyone. True about milk secretion is all except. Option A is neuroendocrine part of posterior pituitary is involved. Option B is secretion by contraction of lactiniferous sinus. Option C is oxytocin hormone causes ejection of milk. Option D, prolactin causes contraction of myoepithelial cell and not affected by emotions. ठीक है, सभी ने ऑप्शन पढ़ लिया. Now everyone answer this question. True about milk secretion is all except. Everyone. Prolactin hormone is responsible for milk secretion. मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है हमारा? प्रोलैक्टिन. एंड इट इज अंडर द न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. और लैक्टेरिफेरस साइनस में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है देन हमारा इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है. ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? इजेक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है. ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. Option D क्या है? Prolactin causes contraction of myoepithelial cells and not affected by emotions. Milk secretion is affected by emotion. It is under the influence of emotion. ठीक है? Answer is D. This is not true about milk secretion. ठीक है? Clear? Next question. Which is the wrongly matched pair about vasopressin receptors? V1 present in vascular smooth muscles, V2 present in collecting duct, V3 present in anterior pituitary, V4 present in CNS. AIMS 2010 का क्वेश्चन है. Everyone answer this question. Which is wrongly matched pair about vasopressin receptors? Everyone. वैस्कुलर एंडोथेलियम में V1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. कलेक्टिंग डक्ट में V2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. इंटीरियर पिट्यूटरी में V3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. देयर इज नो V4 receptors. Answer is D. Clear? Now coming to the next question. When NaCl is injected into the internal carotid artery, it will cause increased release of ADH by acting on parametial nucleus, anterior pituitary, paraoptic nucleus, supraoptic nucleus. ठीक है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया. Now everyone answer this question. When NaCl is injected in the internal carotid artery, it causes release of ADH by acting on which nucleus? Everyone. ADH का रिलीज जो होता है दैट इज फ्रॉम द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस.
So whenever there is NaCl injected in the internal carotid artery, so supraoptic nucleus stimulate होगा and it will release ADH. Now coming to the next question. Greatest stimulator for ADH secretion is option A is hyperosmolarity, option B is hyponatremia, option C is hypotension, option D is hypovolemia. ठीक है, everyone answer this question. Greatest stimulator for ADH secretion. Hyperosmolarity, hyponatremia, hypotension, hypovolemia. Hyperosmolarity is the greatest stimulator for the ADH secretion. जब भी hyperosmolarity होगा तो हमारा न्यूरोनल सेल्स जो होते हैं hypothalamus में that contract and causes release of ADH. एंड ADH हमारा वाया V2 receptor क्या करता है, हमारा water resorption शुरू करता है and it will normalize the osmolarity of the body. Clear? Next question करें. Now coming to the next question. All of the following are true for ADH secretion except post-operative increase in secretion. Option B, neurosecretion. Option C is increased secretion when plasma osmolarity is low. Option D is act on distal tubule and increase permeability. ऑप्शन सभी ने पढ़ लिया. एम्स 2012 का क्वेश्चन है. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Which of the following are true for ADH secretion except, everyone answer this question. Okay, option 1, post operative increase in ADH secretion always increases in post operative cases. Option A is correct. Neurosecretion, it is secreted from the supraoptic nucleus of hypothalamus. Okay, this is also correct. Increase secretion when plasma osmolarity is low. जब secretion increase कब होता है, when plasma osmolarity is high. ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, it act on distal tubule and increase permeability. ठीक है, हमेशा ADH हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है एंड इट कॉज वाटर एब्सॉर्प्शन. क्लियर? सो आंसर इज सी. एवरीवन क्लियर है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following form antidiuretic hormone is circulated in plasma? ठीक है, bound to neurophysin 1, bound to neurophysin 2, bound to plasma albumin और free form. हमारा जो ADH है वो मेनली प्लाज्मा में किस फॉर्म में सर्कुलेट होता है. ऑल इंडिया 2004 का क्वेश्चन है. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. ADH is circulated in plasma. In which form? Everyone answer this question. मेनली जो ADH का सिक्रीशन होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्री फॉर्म. फ्री फॉर्म में हमारा ADH का सिक्रीशन होता है. इनिशियली वो न्यूरोफाइसिन 1 से बाउंड होता है, बट जो जब सर्कुलेशन में आता है तो वो होता है फ्री फॉर्म में. ऑक्सीटोसिन हमारा इनिशियली बाइंड होता है न्यूरोफाइसिन 2 से. ठीक है, और जब प्लाज्मा में आता है तो इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फ्री. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
all except are cause of accidental transaction of pituitary stalk. ठीक है. Option A, diabetes mellitus. Option B, polyuria. Option C, galactorrhea. Option D, diabetes insipidus. ठीक है. All are true except accidental transaction of pituitary stalk. Diabetes mellitus, polyuria, galactorrhea, diabetes insipidus. ठीक है. ऑप्शन सभी ने पढ़ लिया. नाउ एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. All are true except pituitary stalk अगर ट्रांजैक्ट हो जाए तो what will be the cause. ठीक है. क्या क्या उस सिचुएशन में होगी एवरीवन. ठीक है. पॉलीयूरिया हमारा होगा, एडीएच सिक्रीशन नहीं होगा, पॉलीयूरिया होगा. हमारा क्या होगा, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन विल इंक्रीज एंड इट विल कॉज टू गैलेक्टोरिया. हमारा डायबिटीज इंसिपिटस भी होगा. एडीएच सिक्रीशन विल नॉट अकर और डायबिटीज इंसिपिटस होगा. डायबिटीज मेलाइटस नहीं होगा इसकी. तो आंसर इज ए. क्लियर. ठीक है. पिट्यूटरी स्टॉक ट्रांजैक्टेड है उस केस में पॉलीयूरिया विल बी देयर क्योंकि एडीएच का सिक्रीशन नहीं होगा. ठीक है. गैलेक्टोरिया क्यों होगा, क्योंकि हमारा प्रोलैक्टिन सिक्रीशन विल इंक्रीज, इट विल कॉज गैलेक्टोरिया. डायबिटीज इंसिपिडस भी होगा, एडीएच सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा, दैट विल कॉज डायबिटीज इंसिपिडस. तो आंसर इज डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है. Which of the following is most important in sodium water retention? Option A, renin-angiotensin system. Option B, ethyl natriuretic peptide. Option B is brain natriuretic peptide. Option D is vasopressin. Which of the following is most important in sodium water retention? ठीक है. क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने. Now everyone answer this question. Most important in sodium water retention. Everyone. हमारा जो वेसोप्रेसिन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सोडियम वाटर रिटेंशन. ठीक है. आंसर इज डी. क्लियर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये लास्ट क्वेश्चन था. आज का सेशन हमारा यहीं एंड होता है. That's all for today. Thank you so much everyone for joining. If you like the session, do like and share with your friends so that many more can join and class will be more interactive in that case. Subscribe our channel, that is Let's Crack NEET PG, and press the bell icon so that you will get notification of every class and you won't miss a single class. Do follow me on Telegram. Everyone download this Telegram app and follow the page that is NEET Physiology or search Unacademy Physiology. You will get the page. Follow me out there so that you will get notification of every class and you won't miss a single class. My referral code is Dr. Nidhi. Everyone remember this referral code. Learning from home can be difficult, but you can definitely achieve your target. You can definitely able to crack your exam with good rank. You have to do what? You have to go through the syllabus thoroughly, and after doing that you have to do more and more MCQ. After doing MCQ you will be able to apply your knowledge into your questions. So I will highly suggest everyone कि after revising your topic you go for the MCQ. Thank you so much everyone for joining.
Lastly, do remember this code, that is Dr. Nidhi, so that you can get instant 10% discount in your subscription. Thank you so much everyone for joining.